جھوٹی جمہوریت تیری مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ پارٹی کے MIM کے یہاں کی اکائی کے پرکھنڈ ادھیکش جناب بھائی زاہد صاحب، اس علاقے میں تعلیم کی ایک نئی کرن پھونکنے والے جناب ماسٹر عقیل جوہر صاحب، اس کارواں میں شامل عزیزی اظہار بابو، آپ سب کے سماجی کارکن جناب بھائی سہر الحق صاحب، اور اس پنچایت کے ذمہ دار جو حقوقیہ ہیں بھائی شمشاد صاحب یہاں نہیں ہیں، میری آنکھیں انہیں تلاش کر رہی ہیں، ممبر جناب بھائی اجے کمار جی، بھائی عبدالرحمان صاحب، بھائی ابرار عالم صاحب، بھائی محمد شمشاد صاحب، دھیریندر بھائی، محمد حسن صاحب، سبودھ کمار ہریجن جی، اور یہاں پر موجود سبھی میرے دینی بھائیوں، معزز ترین علماء کرام، بزرگ اور نوجوانوں، عزیز اور پیارے بچوں، میری نیک اور پاکیزہ ترین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ وقت کسی سیاسی گفتگو کا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس موضوع سے آپ نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اس موضوع پر چند باتیں عرض کروں۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک سفر کا مہینہ، سفر المظفر کہتے ہیں، مظفر ظفر سے ہے یعنی کامیابی کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور محرم الحرام کا مہینہ جب آپ کے سامنے میں آتا ہے تو آپ اس مہینے میں رمضان کا چاند دیکھتے ہی رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں نظر آتی ہیں، عید کا چاند دیکھتے ہیں تو عید کی خوشیاں آپ کے سامنے میں ہوتی ہیں، عید اضحیٰ کا چاند آپ دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا منظر آپ کے سامنے میں ہوتا ہے، اور جب محرم کا چاند نکلتا ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ میں آپ سے دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم اور آپ کی بڑی جماعت، آج ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، عرس اعلیٰ حضرت کی یہ دلیل ہے کہ امام اہل سنت سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، ہم محبت رکھتے ہیں۔ بنا محبت کیا ہے؟ ایک مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے تو کئی وجہ سے کرتا ہے، کوئی اعلیٰ خاندان کا طلبگار ہوتا ہے تو اس خاندان میں رشتہ ہو جائے تو میرا خاندان اونچا ہو جائے، کوئی دولت کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ دولت والی لڑکی کو شادی کر لوں تو دولت مند ہو جاؤں، کوئی حسین اور جمیل چہرے کی وجہ سے عاشق ہو جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ جو امام اعلیٰ حضرت کے عاشق ہیں وہ کس لیے ہیں؟ ہم عاشق اس لیے ہیں کہ وہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کے عاشق ہیں، وہ ان کے غلام ہیں اسی لیے ہم ان کے عاشق ہیں۔ تو وہ غلامی کیا ہے؟ سچے عاشق کا مطلب کیا ہے کہ اس کا حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر مقصد پاکیزہ کے لیے اپنی زندگی کو ختم کر دینا۔ ہم اور آپ امت مسلمہ کے فرد ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام بغیر جماعت کے، کیا کہا؟ اسلام بغیر جماعت کے نہیں، اور جماعت بغیر ایمان کے نہیں، اور ایمان بغیر اطاعت کے نہیں، یعنی ہمارے درمیان امام ہونا لازم ہے۔ دو آدمی نماز پڑھتے ہو تو بازو سے بازو کھڑے ہو جاؤ، تین ہو گئے تو امام صاحب کو آگے بڑھا، دو آدمی سفر میں جا رہے ہو کوئی بات نہیں، تین سفر میں جاؤ تو ایک کو امیر بنا دو۔ امیر کا حکم اس قدر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اس کی جو تمہارا امیر و صاحب حکم۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی بغیر امیر کے نہیں ہے، اور اسلام میں تو بغیر امیر کے کسی جماعت کا، کسی سماج کا وجود ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اسلام کی پوری تابناک اور پاکیزہ روشن تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ اسلام کا پیغام لے کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام
पैगाम किसका था? बेशुमार खुदाओं के दरमियान में एक खुदा की परस्तिश का था। जो लोग बेशुमार खुदाओं की परस्तिश करते थे, क्या परेशानी थी? वो अपने खुदा को पूज रहा था, तुम अपने खुदा को पूजते। लेकिन कहा नहीं, खुदाए वाहिद का जो परिस्तार होता है वो इंसाफ का अलमबरदार होता है, वो गर्दन कटा सकता है, अपने बस्तियों में जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि उस वक्त के जालिम हुक्मरान आपके दर पे हो गए। नमरूद की आंखें खुल गई कि पैगाम इब्राहिमी से अगर बस्ती में रोशनी फैली तो मेरे जुल्म जलालत की कहीं खैर नहीं बचेगी। यही वजह है कि सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस वक्त के बादशाह ने आग में डालने का काम किया। ये तारीख आप जानते हैं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने ये खुदा की दावत दी। फिरौन के पेट में ऐंठन क्यों हुई? फिरौन के पेट में ऐंठन इसलिए हुई कि जो मैं कुब्तियों पर जुल्म करता हूं, अगर मूसा के खुदा का पैगाम फैल गया, मूसा जिस दीन को लेकर आया है, ये दीन अगर फैल गया तो मेरा जुल्म नहीं चलेगा, मेरी बातिल सरदारी नहीं चलेगी, कुब्तियों को हम गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। यही वजह है कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन दुश्मन हो गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात, इत्मामे नियामत इलाही, सरवरे अंबिया, खातिमुन नबीयीन, उनकी आमद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ज़हूर हुआ तो गुदखानों में जो पामाली आई, लेकिन सरदारा ने कुरैश के पेट में ऐंठन क्यों हुई कि मोहम्मद का कलमा सिर्फ नमाज की, रोजा की, ज़कात और हज की तलकीन नहीं करता, बल्कि ये कलमा तो समाज में इंसाफ कायम करना चाहता है, जालिमों को हक दिलाना चाहता है, जालिमों का पंजा मरोड़ना चाहता है, मजलूमों का हक दिलाना चाहता है, यतीमों की सरपरस्ती करना चाहता है, गुलामों को आजाद करना चाहता है। उस वक्त के सरदारों के पेट में भी ऐंठन हुई। फिर आप देखेंगे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नवासे रसूल, बागे जन्नत के फूल, और उनका क्या हक किया दुश्मनों ने? क्या कसूर था नवासे रसूल का? नवासे रसूल की लड़ाई, नवासे रसूल की जंग, नवासे रसूल की शहादत किस बात के लिए थी? हमारे जिम्मेदार उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या अकामत सलात की थी? क्या इताए ज़कात की थी? क्या ज़कात के मुनकर थे लोग? क्या नमाज नहीं पढ़ रहे थे लोग जिसकी वजह से आपने जंग की ठानी? नहीं, नमाज पढ़ रहे थे लोग, ज़कात दे रहे थे लोग, हज कर रहे थे लोग, लेकिन था क्या? तरीक़े नबी यही था कि पहले बैयत तब खिलाफ। और यहां पर क्या हो रहा था कि सिलसिले नबूवत के इस तरीके को बदला जा रहा था और जोर जबरदस्ती इक़्तिदार पर कब्जा करने की नाजायज कोशिश की जा रही थी। यही वजह है कि नवासे रसूल ने दुश्मनों के हाथ में हाथ नहीं डाला, दुश्मनों की शमशीर में अपनी गर्दन कटवा दी, कभी भी बातिल के हाथ में हाथ नहीं। अगर आप आका से मोहब्बत करते हैं, यकीनन है कि आका से मोहब्बत का नाम क्या है? हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घूम रहे हैं अंगुष्ठे मुबारक पकड़कर, ऐ उमर फारूक, कैसी मोहब्बत है हमसे? या रसूलुल्लाह, क्या कहना, सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे? नहीं उमर फारूक, या रसूलुल्लाह, अपने बाप, भाई, बेटे, खानदान, सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे? कहा नहीं उमर। जीरत से हजरत सैयदना उमर फारूक कहा, या रसूलुल्लाह, अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। कहा हाँ उमर, ईमान यही है कि अपने जान से ज्यादा जब तक रसूल की जात से मोहब्बत नहीं कर सकते तुम अहले ईमान नहीं हो सकते। बड़े मुकर्रम थी वो हस्तियां जिनको आकाए मदनी सरवरे अंबिया की महफिल नसीब हुई थी। हम तो बदनसीब मुसलमान, दूर और पिछली दूर के सख्त मुसलमान। हम अपनी दावाए मोहब्बत का क्या सबूत पेश करें? दावाए मोहब्बत का सबूत तो साहबा ने पेश किया। ज़बानी दावत नहीं थी, बल्कि अमली दावत थी, अमली शहादत थी। आका के खातिर घर छोड़ा, आका के खातिर बीवी बच्चों को छोड़ा, आका के खातिर कारोबार छोड़ा, आका के खातिर जंगें लड़ी। आका के खातिर क्या हुआ? जंग वहद में कुछ देर के लिए जब दुश्मनों के नरगे में इस्लामी लश्कर आया तो आका ने सदा लगाई, कहाँ हो मेरे सहाबियों?
जब दुश्मनों की तलवार चल रही थी, दुश्मनों की तीर चल रही थी, साहबी रसूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिसार में ले लिया। हर सहाबी की तमन्ना ये थी कि तीर लगे तो मेरे सीने में लगे, मेरे आका को जरा तकलीफ न पहुंचे, गर्दन कटे तो मेरी कटे, मेरे आका की गर्दन न कटे। ये जबानी दावा ही नहीं था, बल्कि अमली शहादत भी थी साहबा की कि जो कुछ जबान से कहा वो करके दिखाया। मेरे भाइयों, हम भी तो गुलाम नबी होने का दावा करते हैं, फिर हमसे भी तो तकाज़ाए मोहब्बत का सबूत चाहिए। हम क्या मोहब्बत करते हैं? हमारी मोहब्बत का पैमाना यही होना चाहिए, आका ने जिस बात को पसंद किया है हम उसे पसंद करेंगे, आका ने जिस बात को नापसंद किया है उसे नापसंद करेंगे। आका ने क्या पसंद किया? आपका एक बाप अगर चौराहे पे उसकी कोई शिकायत करे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आपकी माँ अगर उसकी कोई शिकायत करे चौराहे पे, तो आप गर्दन काटने कटवाने पर तैयार होंगे कि नहीं होंगे? आपकी बहन और बेटी अगर उसकी कोई शिकायत करे चौराहे पे, तो आप लड़ने पर तैयार होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन मेरे भाइयों, हम तो अपने खातिर, अपने नेता के खातिर, अपने खानदान के खातिर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन नबी के खातिर लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या वजह है? यतीमों के माल पर लोगों का कब्जा है। क्या वजह है कि बेटियों को तर्के में हिस्सा नहीं दिया जाता? क्या वजह है कि गांव की सड़कों पर अमीरों ने कब्जा कर लिया है? क्या वजह है कि समाज का जालिम सरदार बन गया है? क्या वजह है कि मजलूम को इंसाफ नहीं मिल पाता है? अगर नमाजी हो और मजलूम को इंसाफ नहीं दिला सकते हो, अल्लाह के रसूल की यह हदीस सुन लो मेरे बुजुर्गों। हमारे उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए मैं तत्हीर अफकार के अपने फिक्र की पाकीज़गी और इस्लाह के लिए बयान करता हूँ। ऐ जिब्रील अमीन, जा उस गांव को उलट दे, या खुदावंदा उस गांव को उलट दूं, लेकिन वहां तो एक बड़ा ही नेक मुत्तकी परहेजगार बंदा रहता है। बस्ती चौपट हो गई है, लोग शराबी हो गए, बच्चे बदकार, औरत बदकार, मर्द बदकार, लेकिन खुदावंदा एक बड़ा मुत्तकी और परहेजगार बंदा हुआ रहता है। पलक झपकते पर तेरी नाफरमानी नहीं की, उसके बारे में क्या हुक्म है? बाज रवायतों में आता है कि फरमाने इलाही है कि जा पहले उसको उलट दे, और बाज रवायतों में आता है कि उसके समेत बस्ती को उलट दे, क्योंकि बुराई समाज में फैलती रही। ये रोजा नमाज करता रहा, बुराइयों को बदलने की जिसने कोशिश नहीं की वो भी बुरे लोगों में शामिल। मेरे भाइयों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, जुमा की मस्जिद में खुतबा सुनते हो, वो यामुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का, एहसान करने का, लेकिन किसी ने अपनी बीवी को बेटा पिटाई कर दी, माँ को धक्का मारा, पंचायती के लिए आता है, तो जो लोग नमाज में थे वो लोग कहते हैं हंचा सिरानी है, तो नेताजी बोले तो तुम्हारे से नहीं है बेटा काम करने, तुम्हारा बच्चा सुने लंचा बोले, ज्यादा काम करवा चाहिए बेटा बोलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा की एक बड़ी तादाद है आज भी इस बिगड़े हुए हालात में भी हक और सदाकत की बात को कहने से कभी नहीं चूकते।